سال کے ہیں اور یہ لوگ کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ تو صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بچے سے تم کیا امید رکھ سکتے ہو کہ آگے چل کر کے یہ بچے مسلمان بھی کہلائیں گے یا نہیں؟ میرے محترم بزرگوں، لوگوں کو احساس ہوا، کچھ ذمہ دار قسم کے لوگ وہاں گئے، اسکول انتظامیہ سے بات کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے دن آدھے گھنٹے کا وقت اتنے بجے سے اتنے بجے دیں، ہمارا امام آئے گا اور ہمارے بچوں کو جمعہ کی نماز پڑھا دے گا۔ اس عیسائی اسکول والے نے یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں کو تو لے جا سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ان کی پلاننگ ہے کہ مسلمان بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ نماز سے دور ہو جائے، وہ احکام خداوندی سے دور ہو جائے۔ ایک اور واقعہ اچانک یاد آیا، عیسائی اسکول میں مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو کس طرح متزلزل کیا جاتا ہے۔ جس بچے کو ہم نے یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکتب میں سکھایا، اور جب وہی بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے خدا ہے، یہ تمہارے رب ہے۔ ایک بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، بڑے اللہ والے، واقعی وہ اللہ والے انسان تھے۔ یہ اپنوں کا واقعہ بتا رہا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اس آدمی صاحب کو۔ بوکارو کے رہنے والے ہیں، حاجی نعیم صاحب نام ہے ان کا، خانقاہ رحمانی سے بھی بڑا گہرا ربط ہے، بڑے اللہ والے آدمی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالم نہیں ہے لیکن وہ حلال و حرام اور دیندار، حلال و حرام کا احترام کرنے والے اور دیندار انسان ہے۔ ان کا پوتا آیا اور کہا کہ دادا جان آج ہم نے اللہ میاں کو دیکھ لیا۔ دادا بہت پریشان، یہ چھوٹا سا بچہ اللہ میاں کو کیسے دیکھ لیا؟ کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ کہا کہاں دیکھا پوتا؟ کہا ہم نے اسکول میں دیکھا ہے۔ کہا چلو ہم کو بھی دکھاؤ۔ وہ دادا گھبرا گئے، یہ کیا دیکھ کر کے آیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہ جب اسکول گئے تو بچہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی جو مورتی ہے اس کو لے جا کر کے دکھایا کہ یہ اللہ ہے، اس کو دیکھیے۔ چونکہ وہاں ماسٹر جو عیسائی تھے اس نے اس بچے کو یہ بتایا یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا اللہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قربان جائیے اس حاجی صاحب پر، وہ رونے لگے، بلکنے لگے کہ میں اتنا کام کیا، اتنی جائیداد بنایا، اتنا کچھ کیا، لیکن میں اپنے پوتا کو مسلمان نہیں بنا سکا۔ لعنت ہے ایسی دولت پر، ایسی نعمت پر، ایسی زمین پر۔ انہوں نے فوراً دل میں ارادہ کیا کہ میں ایک ایسا اسکول قائم کروں گا جس اسکول میں تعلیم تو انگریزی کی ہوگی لیکن تربیت دینی طرز پر ہوگی، یعنی دینی علوم سے بھی بچوں کو آراستہ کیا جائے گا، اور اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ فروخت کر کے ایک بہترین اسکول انہوں نے قائم کیا، جس اسکول میں پڑھنے والے بچے وہ دنیا کے جہاں جس ماحول میں بھی جائیں گے وہ مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جو دوسرا پیغام ہے وہ یہ کہ ہم سب کو چاہیے کہ اسکول کے تعلق سے فکر مند ہو، اور بچوں کو جب کسی اسکول میں دیں تو اس اسکول کا پہلے جائزہ لے لیں کہ یہ اسکول مسلمانوں کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس اسکول میں مسلمان بچہ مسلمان بن کر کے رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو بہت کچھ سکھا دیا، دے دیا، اور اگر دین نہیں دیا تو یقین جانیے ہم خسارے میں ہیں اور ہمارا بچہ بھی خسارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اس ملک میں دو بڑی شخصیت گزری ہے اور دونوں اتفاق سے ہمدرد تھے، دونوں درسی ساتھی تھے، ایک ساتھ پڑھنے والے تھے۔ ایک کا نام ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک کا نام ہے جناب سر سید احمد مرحوم۔ یہ دونوں درسی ساتھی تھے، مولانا مملوک رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں شاگرد تھے۔ ایک نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، ایک نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کیا۔ میرے محترم بزرگوں، دارالعلوم دیوبند سے نکلنے والے فضلہ علماء، ان کے پڑھے ہوئے بچے، انہوں نے لاکھوں دارالعلوم قائم کیے، اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں مکاتب قائم کیے، اور ہر مسجد مکتب کو آباد کرنے والے افراد تیار کیے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، سر سید
के कायम किए। अगर वो भी इस तरफ तवज्जो देते और छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे कॉलेज या यूनिवर्सिटियां कायम करने की कोशिश करते, हम आपसे जिस तरह 1 रुपए 2 रुपए मांग करके बड़े बड़े मदारिस और दारुल चल रहे हैं, तो ये भी काम किया जा सकता था। लेकिन यकीनन मुसलमानों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज मुसलमानों का इल्मी एतबार से बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है, हम इन्हें की तरफ है। इसलिए ये दूसरा पैगाम बड़े दर्द के साथ है कि अमीर शरीयत का कि आप तरक्की की राह पर अगर दौड़ना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को दीन के साथ साथ वो तालीम भी जरूर दीजिए। और अल्लाह के रसूल ने ये दिखाया है करके कि हमें हर तालीम को हासिल करना चाहिए। ग़ज़वे बदर जो सबसे पहली जंग है इस्लाम की, अल्लाह के रसूल को पतन मिली और जब अल्लाह के रसूल ने कैदियों को गिरफ्तार करके लाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग उसमें मालदार लोग थे उनके तो माल लेकर के छोड़ दिया, लेकिन जो लोग उसमें पड़े हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफार मक्का को कहा, उन कैदियों को कहा कि तुम हमारे साथियों को पढ़ना लिखना सिखा दो। हमारे जो साथी पढ़े लिखे नहीं है तुम उनको पढ़ना लिखना सिखा दो, यही तुम्हारे लिए फिदिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, क्या वो लोग कुरान करीम तालीम जाने हुए थे, क्या हदीस मुबारका को सीखे हुए थे? वो लोग तो काफिर थे, वो तो कुरान और हदीस से दूर थे। यकीनन उन्होंने जो इल्म सिखाया होगा वो दुनिया का इल्म होगा, वो दुनिया में नफा पहुंचाने वाला इल्म होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी, कपड़े और माल पर इल्म को फौकियत दिया। वो गुर्बत का उनका जमाना था, उनके पास हम और आपके तरह 3 वक्त खाने के लिए भी सहाबा को उस वक्त मुयस्सर नहीं था, पहनने के लिए इतने सारे कपड़े भी नहीं थे। वो चाहते तो माल पर सौदा करते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इल्म को तरजीह दिया और इल्म को कहा कि पहले हमारे साथियों को पढ़ा दो, तुम माल मत देना, तुम पढ़ा दो, यही तुम्हारा फिदिया है। बस मेरे मोहतरम भाइयों, हम और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि हम अपने ग़िज़ा को कुछ कम कर दें, अपने सालन को कुछ कम कर दें और बच्चों को पढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, तो ईमान बच्चों का महफूज रहेगा। वो दिल्ली जाए, कलकत्ता, पंजाब जाए या दिल्ली कहीं भी जाए, वो अपने ईमान की हिफाजत जरूर करेगा। और हम सिर्फ अपने बच्चों के ताल्लुक से फिक्रमंद न हो, बल्कि हम कोशिश करें कि मोहल्ला का हर बच्चा आए। एक आदमी वो है जो अपने बच्चे की फीस 500 रुपए अदा करने पर कुदरत रखता है। एक इंसान वो है जो अपने बच्चे का 100 रुपए भी अदा नहीं कर सकता है। स्कूल में बच्चे की फीस 200 रुपए है, तो हम जो 500 रुपए अदा करने पर कुदरत रखते हैं, तो हमें भी अपने बच्चे की फीस 200 रुपए देनी है। तो हम ईमान वालों को चाहिए कि गरीब बच्चे को गोद ले लें और अपने बच्चे का जो हम 500 दे सकते थे उसमें से 200 रुपए लगा दें, तो एक बच्चा पढ़ लेगा और 100 रुपए मजीद अपनी तरफ से लगा दें, तो आप 2 गरीब बच्चे को गोद में ले करके मतलब और स्कूल में पढ़ा सकते हैं। क्या ये काम और आपके करने का नहीं है? यकीनन करने का है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं। यकीनन आज मुसलमान गरीब नहीं है, आज मुसलमान फक़्र फ़ाक़ा में नहीं है। अल्लाह के रसूल और इस शरीयत में गरीब उसको कहा गया, मिस्कीन उसको कहा गया जिसके पास 2 वक्त का खाना हो। हम सब जायजा लें कि हमारे पास साल भर का भी खाना मौजूद है। बस मेरे भाइयों, इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और तीसरी चीज जो है वो फक़्र फ़ाक़ा है कि इंसान गुर्बत की वजह से अपने ईमान का सौदा कर सकता है। हुजूर अकरम ने फरमाया कादल फ़क़्र व यकून कुफ़्रा, कि ये मुझे अपनी उम्मत पे डर है कि ये गुर्बत की वजह से ये कुफ्र तक न पहुंच जाए और यकीनन ईमान वाला बसा औकात इस तरह कर लेता है। आज समाज में हम सब जानते हैं कि बहुत सारी हमारी बच्चियां गुर्बत की वजह से, जहेज की लानत की वजह से वो दूसरों के साथ जा रही है। ईमान वालों, अगर कल क़यामत के दिन वो खातून, वो बच्ची अल्लाह के रसूल के सामने दामन पकड़ ले, ये वो लोग हैं जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तिलक व जहेज के रस्म को खत्म नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने तिलक व जहेज के रस्म को बढ़ावा दिया, ये वो लोग हैं
जिन्होंने दीनी तालीम से हम लोगों को आरास्ता नहीं किया, अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ किया, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर हमने ये कदम उठाया था, उस वक्त हम और आप क्या जवाब देंगे? बस मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि हम गुर्बत अपने समाज से किस तरह दूर हो, इसके लिए फिक्रमंद हो और फिक्र करने की जरूरत है। आज मांगने वाली कौम अक्सर और बेशतर ईमान वाली कौम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला आदमी मांग रहा है, और अल्लाह का बड़ा नाम जो जिक्र अस्कार के लिए है, इस नाम को हम अल्लाह के नाम पर मांगते हुए नजर आते हुए लोगों को देखते हैं। ऐ लोगों, आपने कभी सिख को नहीं देखा होगा कि वो गुरु नानक के नाम पर मांग रहा होगा, बल्कि सिख ने अपने अंदर ये सिस्टम, एक रिवायत अपने यहाँ कायम कर रखी है कि जो गरीब सिख होता है उसको मदद करता है। आपके मुसलमानों में ही एक गोरा मुसलमान कहलाता है, वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है। गोरा में भी कोई गरीब नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? इसलिए कि उसने एक तरीका इख्तियार किया है कि हर मोहल्ला में उसकी कमेटी होती है जिसमें लोग कुछ न कुछ इमदाद करते रहते हैं इस नाम पर कि कोई गिरा हुआ भाई हमारा होगा, गरीब होगा, तो इस पैसे से उसके कारोबार को बढ़ाएंगे और उसको उठा देंगे। आज हम और आप अपने पैसों को बैंक में रखते हैं। बैंक में अगर 10 साल आपने पैसा रखा और वो पैसा आपको 10 लाख हो गया, 10 साल में 5 लाख जमा किया, 10 साल के बाद 10 लाख हो गया अगर वो पैसा, तो याद रखिए वो 10 लाख नहीं हुआ बल्कि वो 1 लाख के बराबर हो गया। 5-10 साल के बाद 5 लाख की अहमियत और 10 लाख की अहमियत कुछ भी नहीं होगी। इस 5 लाख की जो अभी अहमियत है वो 10 साल के बाद इस 10 लाख की अहमियत नहीं होगी। आपका पैसा बैंक में जहन्नम में ले जाने का रास्ता तो बना सकता है, आपको राह रास्त से हटाने का सबब तो बन सकता है, लेकिन आपको जन्नत में पहुंचाने का जरिया नहीं बन सकता है। अगर हम और आप कुछ इरादे को मजबूत कराने की कोशिश करें कि गांव में अगर कोई गरीब भाई है तो उसको 10,000 रुपए कर्ज दे करके कुछ छोटा मोटा कारोबार बढ़ा दें और उसकी निगरानी करें गांव के नौजवान लोग, ये कारोबार ईमानदारी से करें, और अगर आप उसकी गुर्बत का खात्मा करा देंगे, वो अपने ईमान को बचा ले आपके 10,000 रुपए खर्च देने की वजह से, तो यकीनन एक इंसान के ईमान के बचाने की वजह से हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा कोई सजदा कबूल न किया हो, लेकिन उस इखलास को अगर अल्लाह कबूल कर ले तो वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। ईमान वाले भाई, आज गैर इस बात की कोशिश में है कि वो मुसलमान जाहिर मुसलमानों को वो कर्ज देता है, मुसलमान को कर्ज नहीं देता है। एक और बात याद आ गई, सुनिए, कर्ज देने में और सदका खैरात करने में कितना बड़ा फर्क है। अगर आपने सदका किया है तो एक सदके का सवाब 1 मिलेगा, 1 रुपए का सवाब 1 मिलेगा, लेकिन अगर आपने किसी को 1 रुपए कर्ज दिया है तो 18 रुपए के बराबर आपको अजर मिलेगा, 18 गुना ज्यादा अजर मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने के वाले को 1 का 1 और कर्ज देने वाले को 1 के बराबर 18 गुना उनको ज्यादा अजर मिलेगा। इस फर्क को समझिए। नबी करीम ने क्यों बताया? जो कर्ज हम दे रहे हो तो उसको वापस कर देगा, फिर इसमें 18 गुना अजर क्यों है? और जो सदका हम किए वो तो हमको वापस नहीं आएगा, लेकिन उसमें सवाब कम क्यों है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मदद मांगने वाला गरीब भी होता है। स्टॉप नहीं हो रहा है। अगर अभी इमाम शरिया की तरफ से अभी देखा मैं, हाफिज मुजीब साहब मसाला बांट रहे थे, उनको किसी सेठ ने मसाला दिया है गरीबों में बांटने के लिए। यकीनन वहाँ अमीर के भी बच्चे